السلام علیکم ناظرین سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک جگہ سے محافظوں کی ایک پارٹی کو چیخیں سنائی دیں اور یہ الفاظ بھی سنائی دیے کہ میں ہرکل کا خون پینے جا رہی ہوں۔ محافظوں کی اس پارٹی نے ایک اور پارٹی کو بھی بلا لیا اور اس طرح یہ 12-14 محافظ اکٹھے ہو گئے۔ وہ پھیل کر آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے ایک ذرا زیادہ عمر کے محافظ کو اسلامی اصولوں کے تحت اپنا امیر یعنی کمانڈر بنا لیا تھا۔ اس کمانڈر نے کہا کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو اور کسی نہ کسی آیت قرآنی کا ورد دل ہی دل میں کرتے جائیں۔ کمانڈر کی ہدایت کے مطابق وہ محاصرے کی صورت میں بڑھتے گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بدروح کی چیخ یا پکار سنائی دیتی تھی جو معلوم ہوتا تھا کہ دور ہٹتی جا رہی ہے۔ آخر انہیں وہ نظر آ گئی۔ محافظوں نے اسے اسی حلیے میں دیکھا جو انہوں نے متعدد بار سنا تھا۔ محافظ نیم دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ الٹے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ تم چڑیل یا بدروح ہو تو فوراً غائب ہو جاؤ، کمانڈر نے کہا اور اپنی برچھی ہاتھ میں یوں تولی جیسے اس پر برچھی پھینکے گا۔ اس نے کہا کہ اگر انسان ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اور تمہارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ہم تم سے نہیں ڈر رہے، تم ہم سے نہ ڈرو۔ مجھے ہرکل تک پہنچا دو۔ وہ جو کوئی بھی تھی بولی، ہرکل نے میرا خون بہایا ہے، میں اس کا خون پینے جا رہی ہوں۔ ہم تمہیں ہرکل تک پہنچا دیں گے، کمانڈر نے کہا۔ تم جانتی ہو ہرکل ہمارا دشمن ہے۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ وہ قتل ہو جائے۔ ہم تمہارے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجیں گے، تم محفوظ بھی رہو گی اور ہمارا آدمی تمہارا کام بھی کر دے گا۔ کمانڈر گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف گیا۔ اس نے برچھی اپنے ہاتھ میں تیار رکھی۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کمانڈر نے شفقت اور پیار کی اور اس کی ہم خیالی کی باتیں جاری رکھیں اور اس تک پہنچ گیا۔ اسے بازو سے پکڑا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ اور رضا تبرو کے ساتھ ہمارے ہاں چلو۔ لڑکی بغیر مزاحمت کے بڑے آرام سے کمانڈر کے ساتھ چل پڑی۔ اپنے گھوڑے کے قریب لے جا کر کمانڈر نے لڑکی کو گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور گھوڑے کے آگے آگے چلنے لگا۔ تمام محافظ گھوڑوں پر سوار تھے۔ واپسی کے وقت وہ لڑکی کو ہی دیکھتے رہے۔ انہیں غالباً یہ توقع تھی کہ یہ لڑکی ابھی غائب ہو جائے گی، لیکن سالار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ لڑکی غائب نہ ہوئی۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ سالار اپنے محافظوں کا انتظار بڑی ہی بے تابی سے کر رہا تھا۔ اتنے میں سالار کو دربان نے اطلاع دی کہ محافظ ایک لڑکی کو لائے ہیں۔ سالار تو جیسے حیرت سے رک گیا ہو۔ اس کے کہنے پر محافظ دستے کا کمانڈر لڑکی کو سالار کے کمرے میں لے گیا۔ صرف محافظ کو سالار کے کمرے میں لے جایا گیا جو لڑکی کو لایا تھا۔ سالار کے گھر کے باہر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ شہر کے جو آدمی سالار کے پاس یہ درخواست لے کر آئے تھے کہ اس بدروح یا چڑیل کا کچھ کیا جائے، انہوں نے شہر میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ سالار نے اپنے محافظوں کو بھیجا ہے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس خبر پر لوگ پہلے ہی وہاں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سالار کو بتایا گیا تھا کہ لوگ باہر یہ دیکھنے کے لیے دیر سے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ محافظ کیا کر رہے ہیں یا ان پر کیا گزری ہے۔ سالار نے لڑکی کو دیکھ لیا تھا جس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ تو انسان ہے۔ اس نے کہا کہ ان آدمیوں میں سے چند ایک معزز اور نمائندہ قسم کے آدمیوں کو اندر بلا لیا جائے تاکہ وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ 10-12 آدمی اندر آ گئے اور سالار نے انہیں بٹھا لیا۔ سب کی نظریں لڑکی پر لگی ہوئی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ میرا نام یوکلس ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں خسر پھسر ہوئی اور ایک نے کہا کہ یہ تو مردانہ نام ہے اور ایسے نام رومیوں کے ہوتے ہیں۔ میں یوکلس ہوں، لڑکی نے کہا، اور یوکلس روزی ہے۔ یوکلس زندہ ہے اور روزی قتل ہو گئی ہے۔ روزی کو کس نے قتل کیا ہے؟ سالار نے پوچھا۔ ہرکل نے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ہرکل کو قتل کرنے جا رہی ہوں، میں اس کا خون پیوں گی۔ سالار سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ ناظرین، روزی نے یوکلس کی خون آلود لاش دیکھی تو صدمے نے اس کے دماغ کو بنیادوں تک ہلا کر رکھ دیا اور یہ خیال اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یوکلس کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہرکل نے قتل کروایا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ انطاکیہ سے بڑی کشتیاں اور جہاز مصر جایا کرتے تھے اور ہرکل مصر چلا گیا ہے۔ وہ یوکلس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے چل پڑی تھی۔ 45 میلوں کا فاصلہ کوئی معمولی فاصلہ نہ تھا۔ وہ عام سے راستے سے ہٹ کر جنگلوں میں سے گزرتی جا رہی تھی تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ سالار کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ لڑکی کو سب کے سامنے لے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اس خوف و ہراس سے نجات مل گئی کہ یہ کوئی چڑیل یا بدروح یا جنات میں سے ہے۔ اگر مسلمان سالار کی جگہ کوئی رومی جرنیل ہوتا تو لڑکی کو پاگل قرار دے کر قتل کروا دیتا،
لیکن وہاں کسی سالار اور کسی جرنیل کا حکم نہیں چل سکتا تھا، وہاں اب اللہ تعالیٰ کی حکمرانی تھی اور اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام کی پیروی لازمی تھی۔ سالار روزی کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اسے مستورات کے حوالے کر کے کہا کہ اسے نہلائیں اور اچھے کپڑے پہنائیں اور پھر اسے کھانا کھلائیں۔ واپس آ کر سالار ان لوگوں میں بیٹھ گیا جو اس کے ملاقات والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے مشورہ دیں، سالار نے حاضرین سے کہا۔ میں اس لڑکی کو گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا اور اس حالت میں گھر سے نکال بھی نہیں سکتا۔ اس کی دیکھ بھال اور اس کی آبرو کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے کسی مخلص اور درد مند آدمی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جو اسے اپنے گھر میں رکھے۔ میرا طبیب اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے اور یہ بتا دے کہ یہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں کی رہنے والی ہے۔ وہاں سب سے پیچھے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں سرگوشیوں میں صلاح و مشورہ کیا۔ امیر انطاکیہ، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم 3 آدمی مصر سے آئے تھے اور اپنا کام کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہاں سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بدروح کو پکڑ کر لائے ہیں۔ ہم اسے دیکھنے کے لیے رک گئے تھے اور اب پتہ چلا ہے کہ یہ بدروح نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں ہے، کسی عیسائی قبیلے کی ہے۔ ہم قبطی عیسائی ہیں۔ اگر آپ کو ہم پر اعتماد ہے تو ہم اس لڑکی کو ساتھ لے جائیں گے، اس کا علاج بھی کرائیں گے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گئی اور اس نے واپس آنا چاہا تو ہم اسے اس کے گھر چھوڑائیں گے، اور اگر یہ شادی پر رضامند ہو گئی تو اس کی کسی کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ لڑکی نوجوان ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ حاضرین مجلس میں سے 3-4 آوازیں اس شخص کی تائید اور حمایت میں اٹھیں اور آخر سالار نے فیصلہ دے دیا کہ لڑکی ان کے حوالے کر دی جائے۔ لڑکی جب بلانے پر واپس سالار کے ملاقاتی کمرے میں آئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسے نہلایا گیا، کھانا کھلایا گیا اور اچھا لباس پہنایا گیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ سب حیرت زدگی کے عالم میں چلے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ سالار نے اسے کہا کہ اس نے اس کے لیے 3 آدمی تیار کر لیے ہیں جو اسے ساتھ لے جائیں گے اور ہرکل کے قتل میں ساتھ ہوں گے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ اسے ساتھ لے جانے والے آدمی نے بڑے پیار اور اعتماد سے باتیں کی تو لڑکی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ سالار نے آخری فیصلہ یہ سنایا کہ آج رات لڑکی اس کے گھر کی مستورات کے پاس رہے گی اور کل فجر کی نماز کے فوراً بعد ان آدمیوں کے سپرد کر دی جائے گی اور یہ آدمی اسی وقت مصر کو روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری صبح نماز فجر کے بعد سالار واپس گھر آیا تو ان تینوں آدمیوں کو منتظر پایا۔ اس نے روزی کو ان کے حوالے کر دیا اور وہ چلے گئے۔ انطاکیہ سے سکندریہ تک خشکی کا راستہ بھی تھا، لیکن 1-2 دنوں بعد ایک بحری جہاز اسکندریہ جا رہا تھا۔ انہوں نے سمندری راستہ اختیار کیا۔ راستے میں روزی ایک ہی بات کرتی تھی کہ وہ ہرکل کو قتل کر کے اس کا خون پیے گی۔ تینوں آدمی اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور کہتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ رات کو روزی سو جاتی تھی تو یہ تینوں آدمی جہاز کے عرشے میں کچھ دیر کے لیے جا بیٹھتے اور گپ شپ لگا کر سوتے تھے۔ ہورشیس، ان 3 میں سے ایک آدمی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری بیٹی بچ جائے گی۔ یہ لڑکی کنواری معلوم ہوتی ہے، امید تو یہی ہے۔ ہورشیس نے کہا، میں نے تو اپنے آپ کو اس صدمے کے لیے تیار کر لیا تھا کہ میری بیٹی کی قربانی دے دی جائے گی۔ یہ تو خدا کی خاص مدد ہے کہ یہ لڑکی مل گئی ہے۔ ہمارا اسقف اس لڑکی کو قبول کر لے تو میں صدمے سے بچ جاؤں گا۔ روزی کو اپنے ساتھ لانے سے ہورشیس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ یہ مسئلہ اس کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جسے وہ ناقابل برداشت کہا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے سالار کو جو امیر انطاکیہ تھا، ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا تھا کہ یہ شخص انسانی ہمدردی اور نیکی کے پردے میں اسے اور روزی کو بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ ہورشیس کی اس فریب کاری کا پس منظر یہ تھا کہ قبطی عیسائی ہر سال ایک خاص رات دریائے نیل کو ایک نوجوان کنواری لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جس لڑکی کی قربانی دینی ہوتی تھی اس کے والدین کی رضامندی اس میں شامل ہوتی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا کہ کسی لڑکی کو زبردستی اٹھا کر دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ اب کہ جس قبیلے کے ذمہ یہ قربانی تھی اس میں صرف ہورشیس کی بیٹی نوجوان اور کنواری تھی، باقی سب کی بیٹیاں بہت چھوٹی تھیں یا شادی شدہ تھیں۔ ہورشیس کو اسقف نے بتا دیا تھا کہ اس سال وہ اپنی بیٹی کو قربان کرے گا۔ ہورشیس کی کل اولاد یہی ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کے ساتھ اسے اور بیٹی کو اس کے ساتھ والہانہ پیار تھا۔ بے شک اسقف یعنی بڑے پادری نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی بیٹی کو قربان نہیں کرنا تھا، پھر بھی ہورشیس کو معلوم تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ اس کے گھر میں تو باقاعدہ ماتم شروع ہو گیا تھا۔ بیٹی خود بھی قربانی کے لیے تیار نہیں تھی۔
उसने सदमे की कैफियत में यहाँ तक कह दिया कि वो उस्कोफ आज़म को गिरजे में खड़े होकर कह देगी कि उसकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन वो कुंवारी नहीं है, इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी और नील का बहाव रुका रहेगा। और शीश और उसकी बीवी ने बेटी को सख्ती से मना कर दिया और कहा कि झूठ बोलना भी गुनाह है और इस झूठ से उनके खानदान की और पूरे कबीले की बेइज्जती होगी और यह भी हो सकता है कि उन पर यह इल्ज़ाम आयद हो जाए कि यह लड़की अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। उन लोगों का यह अकीदा गलत ही सही, लेकिन ये लोग अपने अकीदों की पाबंदी बड़ी ही सख्ती से करते थे। हरकल ने जो सरकारी ईसाइयत राइज की थी उसके मुताबिक यह कुर्बानी कत्ल जैसा जुर्म था, लेकिन ये लोग यानी किब्ती ईसाई दिन की बजाय रात को ये रस्म पूरी कर लिया करते थे। और शीश को जब उस्कोफ ने कहा था कि अब उसकी बेटी की कुर्बानी दी जाएगी तो उसने बिला हीलो हुज्जत सर झुका लिया था। कुर्बानी की रात अभी 1.5-2 महीने दूर थी और शीश को अकलौती बेटी का गम खाने लगा था। अपने कारोबार के सिलसिले में उसे अपने 2 कारोबारी साथियों के साथ इंताकिया और 1-2 जगहों पर जाना पड़ा। उसके साथी उसका दिल ये कहकर बहलाते रहे थे कि वो खुदा के नाम पर बेटी कुर्बान कर रहा है और ये कुर्बानी ऐसी है जो बनी नू इंसान की भलाई के लिए है, इसलिए खुदा उसका गम खुशी में बदल देगा और उसे न जाने क्या अजर मिले। लेकिन और शीश पर कुछ असर नहीं हो रहा था, वो गमों के बोझ तले करहता ही रहता था। जहाज सिकंदरिया की बंदरगाह से जा लगा, मुसाफिर उतरे और अपने अपने ठिकानों को चल पड़े। और शीश सिकंदरिया से खासी दूर किसी गांव का रहने वाला था। उनकी मंजिल दूर थी, इसलिए उन्होंने ऊंट किराए पर लिए और रात गहरी हो गई थी जब वो अपने गांव पहुंच गए। अगली सुबह और शीश अपने दोनों साथियों को साथ लेकर उस गांव पहुंचा जो उन लोगों का मजहबी मरकज था। वो सबसे बड़े मजहबी पेशवा से मिला और उसे यह झूठा बयान दिया कि इंताकिया में उन्हें एक कुब्ती ईसाई मिला था और उसने कहा कि उसका कारोबार बहुत ही खराब हो गया है और नौबत फाकू तक आन पहुंची है। ख्वाब में उसे हजरत ईसा ने कहा है कि अपनी इस कुंवारी बेटी को दरियाई नील पर कुर्बान कर दो तो तुम्हारा कारोबार भी सही हो जाएगा और नील के किनारे रहने वालों का भी भला होगा। उस्कोफ ने 2-4 सवाल पूछे और कहा कि लड़की को उसके सामने लाया जाए। अगले रोज रोजी को गिरजे में ले गए और उस्कोफ ने उसे देखकर सिर्फ ये पूछा कि वो अपनी मर्जी से आई है या उसे जबरदस्ती भेजा गया है। रोजी ने कुछ भी ना समझते हुए जवाब दिया कि वो अपनी मर्जी से आई है। रोजी तो अपने होश व हवास में थी ही नहीं, वो पूरी खुद एतमादी और खुशी से बोल रही थी जैसे उसे कोई शक व शुबा ना था। उस्कोफ ने मंजूरी दे दी कि इस लड़की को कुर्बान किया जाए और शीश और उसकी बीवी ने रोजी को बड़े प्यार से अपने घर में रखा और रोजी की जिंदगी का आखिरी दिन आ गया। उस रात उसे दरियाई नील में फेंक देना था। शाम के वक्त रोजी को गिरजे में ले गए। उसे और शीश की बेटी के कीमती कपड़े पहनाए गए थे और जो उसे जेवरात पहनाए गए थे वो भी और शीश की बेटी के थे। और शीश ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सोने के जेवरात कुर्बान कर दिए थे। 10-11 साल पहले यह रस्म ऐलाने अदा की जाती थी। हर तरफ मुनादी करा दी जाती थी कि आज रात नील के किनारे फिलहाल जगह एक लड़की की कुर्बानी दी जा रही है। लोग जोक दर जोक वहां इकट्ठे हो जाते थे और उस लड़की को मुकद्दस समझकर उसके हाथ चूमते थे। मगर हरकल ने ऐसी पाबंदियां आयद कर दी थीं कि इस कुर्बानी को कत्ल करार दे दिया था। फिर भी लोग चोरी छुपे हर साल यह रस्म अदा कर दिया करते थे और इसका ऐलान नहीं होता था। रोजी को एक जगह जो बस्तियों से दूर थी दरियाई नील के किनारे ले गए और शीश ने उसे बताया था कि दरिया पर एक कश्ती मिलेगी और वो उसे उस कश्ती से सिकंदरिया ले जाएगा। उस्कोफ वहां मौजूद था और कबीलों के 2-4 सरदार भी थे। उस्कोफ ने रोजी पर खुशबूदार पानी छिड़का और उसके सामने खड़े होकर कुछ पढ़ा। फिर उसके दोनों कंधों पर बारी बारी उंगलियां रखी और फिर उसके सीने पर उंगली रखी और उसे बाजू से पकड़कर दरिया के किनारे ले गया। वहां किनारा खासा बुलंद था। पीछे होकर उस्कोफ ने रोजी को धक्का दिया और वो दरिया में जा पड़ी। रात तारीख थी। उस्कोफ और बाकी लोग एक मजहबी गीत गुनगुनाने लगे। दरिया खासा गहरा था लेकिन बहाव में तेजी और तुंदी नहीं थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लड़की दरिया में से जिंदा निकल आई हो। हर वो लड़की जिसे दरिया में फेंका जाता था वो डूबकर मर जाती थी। लेकिन रोजी के मामले में कुछ और ही हो गया। रोजी अपने कबीले के सरदार की बेटी थी और बड़ी ही शौक और चुलबुली लड़की थी। उनकी बस्ती के करीब से दरियाए फरात गुजरता था। रोजी अपनी 2-3 हमजोलियों को लेकर दरिया पर चली जाती और तैराकी किया करती थी। अब रोजी को नील में फेंक दिया गया तो न जाने उसे कैसे कैसे ख्याल आए होंगे, लेकिन सबसे पहला और अहम ख्याल यह था कि दरिया में से जिंदा निकलना है। वो दरिया में गिरी तो सत्ता पर आने की बजाय पानी के नीचे ही तैरने लगी और कुछ दूर चली गई। जब दम टूटने लगा तो पानी से उभरी
और दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगी। तरीकी में उसे कोई देख ना सका। देखता भी कौन, उसे दरिया में फेंकने वाले वहां से चले गए थे कि पकड़े न जाएं। रोजी बहुत दूर जाकर दूसरे किनारे जा लगी और दरिया से निकल गई। उसने सबसे पहले तो ये महसूस किया जैसे वो एक ख्वाब देख रही थी और अचानक बेदार हो गई हो। उसकी हकीकी सोचें वापस आ गई थी और दिमाग नॉर्मल हालत में आ गया था। उसने अपना जायजा लिया और यह देखकर हैरान हुई कि ये जेवरात उसे किसने पहनाए हैं। वो वहीं खड़ी रही और सोचने लगी कि अब क्या होगा। उसे तो यह भी याद नहीं था और ना ऐसा एहसास था कि वो अपने घर से कितनी दूर निकल आई है और क्या यह दरियाए फरात है। थक हार कर वहीं बैठ गई। रात तो तारीख थी, लेकिन रोजी का जहन रोशन होने लगा। उसे लड़ाई याद आई, खून रेज लड़ाई। उसे अचानक यूक्लिस याद आ गया। यूक्लिस की मोहब्बत तो उसकी रूह में उतरी हुई थी। उसे याद आ गया कि वो खून में नहाई हुई लाशों और तड़पते के रहते हुए जख्मियों में यूक्लिस को ढूंढती फिर रही थी। उसका जहन खुलने लगा। वो तो जज्बात की शिद्दत थी जिसने जहनी तौर पर उसे मौफ कर दिया था। वो पागल तो नहीं हो गई थी कि उसका जहन हकीकत को कबूल ही ना करता। अब एक और धचका लगा तो वो हकीकी दुनिया में लौट आई। उसे वो आदमी भी याद आ गए जो उसे प्यार और शफकत से बहरी जहाज में लाए थे। तब उसे याद आया कि वो मिस्र का नाम लेते थे। उसे यकीन हो गया कि वो मिस्र में है। रोजी को गुजरे हुए दिनों की बातें याद आ गईं, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि उसे दरिया में क्यों धकेला गया था। अब उसके जहन में बड़ी खतरनाक हकीकत आ गई थी। एक ये जेवरात थे जो कीमती थे और इस सोने से ज्यादा कीमती वो खुद थी। नौजवान भी थी और खूबसूरत इतनी कि उसे कैसर रूम हरकल देख लेता तो अपने हरम की जीनत बना लेता। अपने आप को तो वो छुपा नहीं सकती थी, जेवरात छुपाए जा सकते थे। उसने तेजी से जेवरात उतार लिए ताकि डाकुओं के लिए कशिश ना रहे। पहले उसने सोचा कि यह सारा सोना दरिया में फेंक दे, लेकिन इस ख्याल से रख लिया कि इसकी आवाज किसी से मदद हासिल कर लेगी। उसे घाघरा पहनाया गया था। पांव के करीब से उसने घाघरे का कुछ टुकड़ा फाड़ लिया। जेवरात उसमें बांधकर पोटली लिबास के नीचे बांध ली। करीब ही एक दरख्त था। वो उसके नीचे लेटी और नींद ने उसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। आंख खुली तो दिन की रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं। अपने इर्द गिर्द उसे कुछ आदमियों का एहसास हुआ। हड़बड़ाकर वो आंखें मलती हुई उठी। वहां तो बहुत से आदमी उसके इर्द गिर्द खड़े उसे देख रहे थे। कौन हो? एक आदमी ने पूछा। यहाँ क्यों पड़ी हो? सब कुछ बताऊंगी, रोजी ने कहा। मुझे किसी ऐसे घर ले चलो जिस घर में औरतें हों। मैं धोखे में यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं दरिया से निकली हूँ। रोजी ने देख लिया था कि मजदूर सी किस्म के लोग हैं। बदकार या मुजरमाना जहीनत के लोग होते तो उसे यूं खामोशी से खड़े देखते ना रहते। वहां जबान का कोई मसला न था। मिस्र में भी अरबी बोली जाती थी। लबो लहजे में कुछ फर्क था। हमारा बाबा आ रहा है, एक आदमी ने कहा। वही बताएगा कि तुम्हें घर ले जाना है या क्या करना है। तुम्हारा मजहब क्या है? मैं ईसाई हूँ। फिर डरना नहीं, उस आदमी ने कहा। हम सब ईसाई हैं, किब्ती ईसाई। मैं भी किब्ती हूँ। रोजी ने उन लोगों के साथ रिश्ता पक्का करने की नियत से झूठ बोला। जरा ही देर बाद किसी ने ऐलान के अंदाज से कहा कि हट जाओ, बाबा आ रहा है। सब इस तरह पीछे हटे कि एक तरफ से रास्ता छोड़ दिया। एक मुअम्मर आदमी रोजी के सामने आया। उसके चेहरे, लिबास और चलने के अंदाज से पता चलता था कि ऊंची हैसियत का शख्स है। रोजी को देखकर वो ठुठक के रह गया और ऐसा चौंका कि चंद कदम ही दूर रुक गया और उसके चेहरे पर ऐसी तब्दीली आई जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, बाबा ने कहा। वहाँ मेरी बीवी है, 2 बेटियां और एक बहू है। मैं ऐसे ही घर जाना पसंद करूंगी जहाँ औरतें हों, रोजी ने कहा। बाबा उसे साथ ले चला। रोजी ने गिरदो पेश का जायजा लिया। एक तरफ दरियाए नील था। साहिल पर छोटी बड़ी कश्तियां बंधी हुई थीं। थोड़ी ही दूर आगे और भी बड़ी बदबानों वाली कश्तियां खड़ी थीं। लोग 1-2 कश्तियों से उतर भी रहे थे, सवार भी हो रहे थे। यह यकीन था कि यहाँ से लोग दरिया के पार या दूसरे मकामात को जाते थे। दरिया से 2.5-3 फरलांग दूर एक कस्बा दिखाई दे रहा था। वहाँ छोटे बड़े झोंपड़े भी थे और अच्छी किस्म के पक्के मकान भी। ये कश्ती रानू और माही गिरों की आबादी थी और तमाम तर आबादी ईसाइयत की पैरोकार थी। पतन पर लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। बाबा की हैसियत कबीले के सरदार जैसी थी। वो ईसाइयत के किब्ती फिरके से ताल्लुक रखता था। वो रोजी के साथ बात किए बगैर उसे अपने घर ले गया और एक कमरे में बिठा दिया। फिर घर की औरतों को बुलाया और रोजी से कहा कि वो बयान करे कि उस पर क्या गुजरी है। रोजी ने उसे तफसील से सुनाया कि वो किस ज़हनी हालत में इंताकिया पहुंची।
फिर मिस्र के इस मकाम तक किस तरह लाई गई थी। बाबा खामोशी से सुनता रहा। रोजी बात सुना चुकी तो उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे नहलाओ, कपड़े तब्दील कराओ और खाना खिलाओ। उसने रोजी के सर पर हाथ रखकर बड़ी शफकत से कहा कि इस घर को वो अपना घर समझे और उसे उसके ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। बाबा बाहर निकला और एक आदमी को 2-3 नाम बताकर कहा कि उन्हें फौरन यहाँ ले आए। बाबा का मकान एक कुशादा हवेली थी जिससे बाबा की ऊंची हैसियत का पता चलता था। वो उस हवेली के एक और कमरे में बैठा था। वो आदमी आ गए थे जिन्हें उसने बुलाया था। उनमें से एक ने कहा कि सुना है एक अकेली लड़की पकड़ी गई है, वो मेरे घर में है। बाबा ने कहा, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है। तुम जानते हो गुज़श्ता रात नील को एक लड़की की कुर्बानी दी गई थी। वो यही लड़की थी। ये दरिया से जिंदा निकल आई है। नील ने हमारी कुर्बानी कबूल नहीं की, उगल कर बाहर फेंक दी है। नील हमसे नाराज है। उसका बहाव रुक जाएगा या इतना सैलाब आएगा कि अनाज के फसल बहा ले जाएगा और बस्तियां गर्क हो जाएंगी। हमारे लिए क्या हुक्म है? एक ने पूछा। यह उसको बताएगा। बाबा ने कहा, मैं उसके पास जा रहा हूँ, तुम में से कोई एक मेरे साथ चलो। फैसला उसको नहीं करना है कि इस लड़की को फिर दरिया के सपुर्द किया जाए या किसी और लड़की की कुर्बानी दी जाए। सूरज गरूब होने में अभी कुछ देर बाकी थी जब बाबा वापस आ गया। रोजी अभी तक सोई हुई थी। बाबा ने बीवी को बताया कि उसकोफ ने कहा है कि आज ही रात उस लड़की को फिर उसी जगह ले जाकर दरिया में फेंक दिया जाए और अब उसके हाथ बांध कर फेंका जाए ताकि यह तैर कर निकल न सके। बाबा ने कहा कि लड़की को फौरन तैयार करो। बीवी उस कमरे में जाने लगी जिसमें रोजी सोई हुई थी, तो बाबा ने कहा कि उसे फौरन जगा दो। अभी जगा कर तैयार करती हूँ, बीवी ने कहा। उसने तो नील की आगोश में हमेशा की नींद सो जाना है। बाबा की बीवी ने यह अल्फाज रोजी के कमरे में दाखिल होकर कहे थे। उस वक्त रोजी जाग उठी थी और उसने ये अल्फाज सुन लिए थे। रोजी को शक हो गया और वो बिगड़ गई। बाबा को बताया गया। वो रोजी को बहलाने फिसलाने और वर्ग लाने के जतन करने लगा। बाबा आखिर मुअम्मर और जहां दीदा आदमी था। उसने शफकत और फरेबकारी का हरबा इस्तेमाल किया। सूरज गरूब हो गया। रोजी को बाहर लाया गया। यह खबर लोगों तक पहुंच गई थी कि सुबह जो लड़की मिली थी उसे रात नील में कुर्बानी के लिए फेंका गया था और आज रात उसे फिर फेंका जाएगा। उसका डूब मरना लाजमी है, वरना नील नाराज होकर तबाही और बर्बादी फैलाएगा। लोग रोजी को देखने के लिए बाहर खड़े थे। उस कस्बे की सारी आबादी किप्ती ईसाइयों की थी। सिर्फ किप्ती ईसाई लड़की को कुर्बानी देते थे। वो रोजी को एक मुकद्दस और मुतबरक लड़की समझकर देखना चाहते थे। उन्हें यह तो मालूम ही नहीं था कि लड़की को फरेबकारी से ले जाया जा रहा है। रोजी को बाहर लाए तो लोग उसके हाथ या कपड़े को अकीदत से चूमना या छूना चाहते थे। वो आ गई। कई आवाज़ें उठीं। कुर्बानी वाली लड़की आ गई। ऐसी और भी बहुत सी आवाज़ें थीं जो रोजी के कानों में पड़ी। वो समझ गई कि उसे धोखे से ले जाया जा रहा है। उसने उन 2 आदमियों के साथ जाने से इनकार कर दिया जिनके हवाले बाबा ने उसे किया था। वो दोनों उसे बाजुओं से पकड़कर आगे को चलाने लगे, लेकिन रोजी ने ओधम बपा कर दिया। लोग कुछ और समझे थे, लेकिन वहाँ कुछ और ही तमाशा बन गया। उठा लो, बाबा ने हकमाना आवाज़ में कहा, और कश्ती में फेंक कर ले जाओ। रोजी बैठ गई और दोनों आदमी उसे उठाने लगे। रोजी उनके काबू में नहीं आ रही थी। 3 आदमी आगे बढ़े और उन दोनों आदमियों को पीछे हटा दिया। उन तीनों में से एक ने रोजी को उठने को कहा। रोजी चीख चिल्ला रही थी। उसने उस आदमी को देखा तो वह यूं चुप हो गई जैसे मर गई हो। उसके चेहरे का रंग रूप बिल्कुल ही बदल गया और उसकी आंखें ठहर गईं। उस आदमी ने उन दोनों आदमियों को जो रोजी को उठाने की कोशिश कर रहे थे और पीछे हटा दिया। तुम? रोजी ने उस आदमी से हैरत ज़दा सरगोशी में पूछा। तुम राबन ही हो ना? राबन हुआ करता था, उस आदमी ने कहा। भूल गई हो मैं कितने अरसे से राबन नहीं, अवैस हूँ। तुम्हें इंतकाम लेने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है, रोजी ने कहा। फजूल बातें मत करो। उन तीनों में से एक और ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो खामोशी से हमारे साथ चल पड़ो। मेरे दिल में तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं, अवैस ने कहा। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को जिंदा रखा हुआ है, इतनी बातों का ये मौका नहीं अवैस। तीसरा बोला, इसे इन लोगों के कब्जे से निकालो। ये बातें सरगोशियों में हो रही थीं। अय किब्तियों, अवैस ने तमाशाइयों से मुखातब होकर ऐलान किया, ये लड़की खुशी से अपनी जान देने को तैयार है। ये उस जगह तक हमारे साथ जाएगी जहां उसे ले जा रहे थे। ठहरो, बाबा ने आगे बढ़कर कहा। तुम तीनों मेरे लिए अजनबी हो। मैं खुश हूं कि यह कार खैर तुमने अपने जिम्मे ले लिया है, लेकिन मैं अपने इत्मीनान के लिए तुम्हारे साथ अपने 2 आदमी भेजूंगा। अवैस और उसके साथियों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
दो नहीं, हमारे साथ 6 आदमी भेज दें। अवैस ने कहा, हम किब्ती हैं, किब्तियों को धोखा नहीं देंगे। वो 2 आदमी जो पहले रोजी को घसीट और उठा रहे थे, बाबा के कहने पर अवैस और उसके साथियों के साथ हो गए। रोजी पर तो अवैस ने जैसे जादू कर दिया था। कहाँ वो इतनी शदीद मुज़ाहमत कर रही थी, कहाँ वो उनके साथ बड़े आराम और इत्मीनान से जा रही थी। लोग आगे बढ़ बढ़ कर रोजी को छूने की कोशिश कर रहे थे। जो 2 आदमी साथ जा रहे थे वो थे तो अच्छी हैसियत वाले, लेकिन कश्ती रान कबीले के आदमी थे, इसलिए कश्ती रानी के माहिर थे। कश्ती 2 बदबानों वाली थी। उन्होंने मलाह से कहा कि वो खुद कश्ती लेंगे। मलाह कश्ती से हट गया। रोजी, अवैस और उसके दोनों साथी कश्ती में सवार हो गए। फिर दोनों आदमी कश्ती में गए और बदबान खोल दिए। बाबा ने कहा कि वो रात को बर वक्त पहुंचकर तकरीब में शामिल हो जाएगा। कश्ती चल पड़ी। उसे दरिया के बहाव के मुखालिफ रुख जाना था। हवा तो थी लेकिन दरिया का बहाव तेज था, इसलिए कश्ती की रफ्तार सुस्त थी। सूरज गरूब हो गया था। शाम तारीक होती जा रही थी। पतन पीछे हटता जा रहा था और शाम के गहरे होते अंधेरे में गुम हो गया। तकरीबन आधा फासला तय हो गया था। कश्ती चलाने वाले दोनों आदमी कश्ती के दरमियान बैठ गए थे। अवैस अपने 2 साथियों और रोजी के साथ पीछे बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों साथियों को इशारा किया। तीनों ने खंजर निकाल लिए। उनका शिकार 3-4 कदम आगे बैठा हुआ था। तीनों उठे और पेशतर इसके के उन 2 आदमियों को पता चलता खंजर ऊपर से नीचे आकर उनके दिलों में उतर चुके थे। तीनों ने उन्हें उठाकर दरिया में फेंक दिया। अब कहो रोजी, अवैस ने कहा, मुझ पर एतबार आया है या कुछ शक है? हाँ अवैस, रोजी ने कहा, मेरे दिल में कोई शक नहीं रहा, लेकिन मुझे ले जाओगे कहाँ? शाम, हलब। अवैस ने जवाब दिया, तुम्हारे माँ बाप के पास। हम मुसलमान हैं रोजी, हम भलाई चाहते हैं और भलाई करते हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।